Our gracious God and loving Heavenly Father, Almighty God and wonder-working God, in the highly exalted name of our dear Lord Jesus Christ, our Savior, we come to the holy presence. We thank you and praise you for the grace that given to us to gather in this fashion for this Bible study. Thank you, Lord, for the servant Sam Williams. Loving Father is Lord readily available, Lord, for our ministry. We thank you and praise the Father. Loving Lord, we thank you for all the dear ones we are joined in the Zoom. Loving Father, thank you for the abundant mercy showered upon us, Lord, in the midst of this COVID-19. Now again, the grace to us, loving Father, to come to the presence, to hear your voice. Loving Father, thank you for the fellowship that given to us along the blood-bought children all over Bombay and other parts of India. We thank you and praise the Father. Loving Lord, we committing the servant to the loving hands. Loving Father, give the grace to lead the meeting. Loving Father, also praying for the brothers who are singing the song. Help them, Father, to sing the song. We also join. Loving Father, may glorify you, magnify you, even through the songs. Loving Lord, we're praying for our dear servant. Loving Father, when sharing the word, reveal their thoughts as they reveal the secrets, the mystery to Daniel and to Joseph. Same God is our God. Lord, reveal thy thoughts to us according to Deuteronomy chapter 29, verse 29, Father. Loving Father, whatever you are going to reveal, that is for us and for our children. We thank you and praise the Father. Lord, we're committing the servant in loving hands, Father. Lord, use him for the glory. Lord, right from the beginning till the end, Father, wanted to feel the presence and enjoy the presence. Loving Father, we're praying for the dear brother for the translation also. Give the right word so that Lord may get loving like thy message from the throne of grace. Committing all of us in your loving hands. Pray with thanksgiving in the name of Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Brother Stephen Venikumar. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. So, can you lead us in singing? Okay. Song number 550, 550. इसमें 1, 3 और 6 गाएंगे. 1, 3 और 6. 704. नहीं मैं हूँ कहा है उद्धार करता यीशु प्रभु. डरना नहीं मैं हूँ कहा है उद्धार करता यीशु प्रभु. अपनी शांति तुझे वो देकर भलाई अपनी दिखाया भी. अपनी शांति तुझे वो देकर भलाई अपनी दिखाया भी. उसकी दया प्रेम के लिए तृप्त होकर स्तुति तू कर. उसकी दया प्रेम के लिए तृप्त होकर स्तुति तू कर. डरना नहीं मैं हूँ कहा है उद्धार करता यीशु प्रभु. डरना नहीं मैं हूँ कहा है उद्धार करता यीशु प्रभु. वो मनुष्य नहीं परमेश्वर है तेरे लिए मनुष्य बना. वो मनुष्य नहीं परमेश्वर है तेरे लिए मनुष्य बना. करुणा से उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ दिया. करुणा से उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ दिया.
डरना नहीं मैं हूँ कहा है, उद्धार करता यीशु प्रभु। डरना नहीं मैं हूँ कहा है, उद्धार करता यीशु प्रभु। तेरी यात्रा में बल देने को अपनी देश से लोहू दिया। तेरी यात्रा में बल देने को अपनी देश से लोहू दिया। ऐसे प्रेमी प्रभु के लिए गाओ तुम सब हल्लेलुया। ऐसे प्रेमी प्रभु के लिए गाओ तुम सब हल्लेलुया। डरना नहीं मैं हूँ कहा है, उद्धार करता यीशु प्रभु। डरना नहीं मैं हूँ कहा है, उद्धार करता यीशु प्रभु। Praise the Lord, brother Sam. Rohan, Yes. Praise the Lord, Brother Rohan. Praise the Lord, uncle. We thank the Lord for enabling us to gather together once again this evening to study the precious word of the Lord. प्रभु के धन्यवाद देते हैं। एक और बार इस शाम के समय उसने हमें ये मौका दिया कि उसके बहुमूल्य वचन का ध्यान मनन हम कर सके। Now, for this evening, shall we turn to the book of Genesis once again? और इस शाम के लिए फिर एक बार उत्पत्ति की पुस्तक की ओर हम मुड़ेंगे। And we go to chapter 21. और उसका 21 अध्याय। And we will read from verse 9 to verse 14. और उसका 9 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 21 from verse 9 to 14, please. उत्पत्ति 21 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन। I would request Brother Rohan to read this portion for us. मैं हिंदी में इसको पढ़ता हूँ। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरे वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। And shall we also read verse 33 and 34? और इसका 33 और 34 वचन भी हम पढ़ेंगे। Yes, brother. 33 फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। Shall we look to the Lord in prayer for his grace and help, please? प्रभु के पास हम प्रार्थना में देखेंगे उसकी सहायता के लिए। Loving Heavenly Father, our gracious God, we thank and praise you that in thy love and favor you enable us to gather together this evening as thy people to study your word. प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके प्रेम और प्रसन्नता में एक और बार इस शाम के समय बाइबल अध्ययन के लिए आपने हमको इकट्ठा किया, इसलिए हम आभारी है। We thank you, Lord, for helping us for the past few weeks in order to study the life of Abraham, to see in particular how he went on to become the friend of God. धन्यवाद देते हैं, पिछले कुछ सप्ताहों से आपने अब्राहम के जीवन के ऊपर ध्यान मनन करने के लिए हमारी सहायता की और हम देख सके कैसा वो आगे बढ़कर वो परमेश्वर का मित्र बन गया।
we still cannot or not able to understand how mortal beings like us, with all failures and shortcomings in us, even though we are born again and baptized, that we should become your friends. और हम नहीं समझते कि कैसे हमारे जैसे नाशमान लोग, जो हम में इतनी कमी घटी है, इतनी और प्रभु जी इतना निकम्मापन है, कैसे हम आपके मित्र बन सकते हैं, हम नहीं समझते। This is truly a mystery, O Lord, which we cannot understand even in all eternity. और ये एक रहस्य की बात है जो सनातन में प्रभु जी हम समझ नहीं सकते। And therefore, O Lord, this evening we bow down in gratitude and thanksgiving for this wonderful, incredible, and unbelievable choice of thine for us to become your friends. और इस शाम के समय कृतज्ञता से हम झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आभार मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा, अलौकिक ऐसा जो आपका विचार हमारे लिए है कि हमको आपका मित्र आप बनाएं। But O Lord, then again, as thy word says, which is true, we were from our birth into this world, we were not only sinners, not only dead in our trespasses and sins, we were enemies to our God. और ये बात भी सच है प्रभु जी, जन्म से ही हम पाप में मरे हुए और अपराधों में मरे हुए, ऐसा ही नहीं, और परमेश्वर के हम शत्रु भी थे। Lord, this enmity cannot be taken away between two enemies. और ये जो शत्रुता है दो शत्रुओं के बीच में, ये निकाली नहीं जा सकती। But we thank you, Lord, in the person of your dear Son, the Lord Jesus Christ, this very enmity which was existing between God and man was slain on that cruel cross of Calvary by our Savior. लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में वो जो हमारी बैर है परमेश्वर के साथ, जो शत्रुता है, उसको उस क्रूस के ऊपर, उस बहुत ही क्रूरता का क्रूस के ऊपर उसको वध किया गया। For this great act of your kindness and love, we are debtors to you for all eternity. और आपका ये जो बड़ी दया का और प्रेम का कार्य हमारे लिए है, इसके लिए प्रभु जी हम सदा के लिए, सनातन के लिए आपके हम कर्जदार है। Lord, wholeheartedly we express our gratitude to you this evening and praise and worship you. पूरे हृदय से हमारी कृतज्ञता हम आपको इस शाम के समय हम दर्शाते हैं, हम व्यक्त करते हैं और आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। We thank you, Lord, for all the help granted in this study so far. और अब तक ध्यान मनन में जो आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। As we go on to conclude this series of study, we pray the Holy Spirit of God may be set at liberty to expound thy word and minister to our hearts. और ये जो बाइबल अध्ययन की कड़ी है जो हम आज अंत करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा स्वतंत्रता से आपका वचन हमको समझाए और हमारे हृदय में कार्य करे। Because, O Lord, with our human understanding, we cannot understand the scriptures on our own. क्योंकि हमारे जो मनुष्य की सीमित अवस्था से जो हम आपके जो वचन को, बाइबल को हम हमारी ही समझ से समझ नहीं सकते। And therefore, O Lord, that great teacher, the Holy Spirit of God, whom you have given to us as a gift, he may be able to teach and lead us and guide us into truth. और इस कारण प्रभु जी, जो महान शिक्षक पवित्र आत्मा जो आपने हमको वरदान के रूप में दिया है, वो हमारी अगुवाई करे, हमें सिखाए और सारी सच्चाई में हमें आगे ले चले। Thank you, Lord, for all those who could so eagerly and with great desire could join online for this Bible study. धन्यवाद देते हैं सबों के लिए जो बड़ी इच्छा के साथ इस बाइबल अध्ययन के लिए ऑनलाइन जुड़े हैं। Lord, meet all their needs and fulfill their desires. उनकी सारी आवश्यकताओं को आप पूरी करें और सारी इच्छाओं को आप पूरी करें। And those who will not be able to join because of their jobs and responsibilities, grant them their share also. और जो अपने काम के कारण, जिम्मेदारियों के कारण इस तरह जुड़ नहीं सकते, उनको भी उनका भाग मिले। And those who are reluctant and those who are negligent, Lord, constrain them that they may not lose their own share. और जो इस सेवकाई के विषय में लापरवाह है, आप उनको विवश करें और लेकर आए ताकि वो अपने भाग से वंचित न रहे। Lord, we seek thy grace and help once again for both of us, Rohan and myself, that, O Lord, thou will empty us and fill us just with your word, and that's all.
हम आपके अनुग्रह को फिर एक बार चाहते हैं, हम दोनों को प्रभु जी कि आप हमको रिक्त करिए और आपके आपके वचनों से आप भर दीजिए। Thank you, Lord, for the help granted to our dear brother in translating your word throughout this series. और मुझको भी प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन की कड़ी में जो भाषांतर करने में जो सहायता की, इसलिए मैं आभारी हूँ। Lord, use this vessel for thy praise and glory in the days to come. आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके महिमा के लिए और आपकी प्रशंसा के लिए मेरा उपयोग करे। Remember, Lord, thy dear ones, Lord, thy servants who are looking after the work in the whole of Bombay and Maharashtra. Pray, Lord, thy guidance and counsel and help may be granted to them. और आपके जो दास है, सेवक है, महाराष्ट्र में और सारे भिन्न भिन्न जगह में जो काम कर रहे, सेवकाई कर रहे, आप उनकी अगुवाई करें और उनकी आप सहायता करें। Especially, Lord, as they are overlooking and overseeing the work in the whole of the city of Bombay, pray thy grace may be granted to them. और विशेष करके बम्बई के जो शहर में जो सेवक आप काम कर रहे हैं और जो काम की देखरेख कर रहे, आपका अनुग्रह उनको प्रदान हो। Remember all the believers, O Lord, throughout Mumbai and other surrounding places. We seek thy grace upon all of them. Pray that thy protection and safety may be granted to them, and also thou will go on to bless them. और मुंबई और जो आसपास के भाग में जो सारे विश्वासी है, सबों के लिए प्रार्थना करते, आपकी सुरक्षितता और आपका अनुग्रह उनको मिले और आप उनको भी आशीषित करिए। Pray, Lord, for those who are not keeping well, your gracious healing touch may be granted to them. और जो बीमार है उनके लिए भी प्रार्थना करते, आपका अनुग्रहकारी स्पर्श करने वाले हाथ से आप उनको छूकर आप चंगा करिए। Remember how dear fellow believers who are in bereavement because of the home call of the dear ones, because of the pandemic, O Lord, continue to comfort them according to Isaiah 66 and verse 13. और यशायाह 66:13 वचन के अनुसार जो जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके कुटुंबियों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते कि आप उनको बलवंत करिए और आप उनको शांति दीजिए। Lord, fill the gap that has been created because of the home call of dear ones and go on to meet all the needs in their respective homes. और उन घरों में जहाँ पर प्रियजनों को किसी ने खोया है, उनके घरों में जो जो कमी घटी है आप पूरा करिए और उनकी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा करिए। Lord, even as the pandemic is continuing, O God, our eyes are lifted up only towards the hills from whence cometh our help. और ये महामारी अभी भी जो चालू है, इस समय हमारी आंखें उन पर्वतों के ऊपर लगी है जहाँ से हमको सहायता मिलती है। O Lord, Habakkuk's prayer is our prayer, that in thy wrath thou will remember mercy. और हबाकुक की जो प्रार्थना है वो हमारी भी प्रार्थना है कि आपके क्रोध में आप दया को स्मरण करिए। Spare thy people, O Lord. आपके लोगों को आप बख्शिए प्रभु जी। According to Psalm 57 and verse 1, hide all of us, O Lord, under the shelter of thy mighty wings until all these calamities be overpassed. भजन 57 उसके पहले वचन के अनुसार आपके जो महासामर्थी पंखों तले आप हमको छिपाए रखे जब तक ये सारी विपत्ति हट न जाए। Remember those who are going through financial difficulties, economic difficulties, those who have lost their job, looking for job, Lord, be gracious to them. और जो आर्थिक परिस्थिति से कठिनाई से जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी नौकरियों को खो दिया है, उनके लिए प्रार्थना करते, उनकी सहायता करिए, उनको अनुग्रह दीजिए। Lord, where can we go? To whom can we run, loving Father? प्रभु जी, हम किसके पास जा सकते हैं? हे प्रेमी पिता, किसके पास हम दौड़ के जा सकते हैं? Thou art the only one we have in all this earth and also in heaven. और इस सारी पृथ्वी में और स्वर्ग में केवल आप ही एक ही हमारे लिए है। Look upon us according to the multitude of your mercies and your grace and your compassion. और आपकी जो दया, जो बहुतायत की दया, करुणा और आपका जो प्रेम, इसके दृष्टिकोण से आप हमको देखिए। Lord, now speak to us and bless our time. आप हमसे बातें करिए और हमारे समय को आशीषित करिए। We ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen. Dearly beloved,
Dear beloved, we have been studying for the past few weeks as to how we, like Abraham, can go on to become the friends of God. प्रियो, पिछले कुछ सप्ताहों से हम ध्यान मनन कर रहे हैं कैसे हम भी अब्राहम की नहीं आगे बढ़कर परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। While it is the Lord's desire, we cannot come into this relationship of friendship unless and until we fulfill the conditions laid out in the scriptures. और प्रभु की तो ऐसी इच्छा है, लेकिन जब तक वचन में जो शर्तें रखी है उनको हम पूरा नहीं करते तो इस अनुभव में हम आ नहीं सकते। So as we have been meditating, we have been seeing what those conditions were as we saw them in the life of Abraham. और जब हम ध्यान मनन कर रहे थे, हमने देखा कि वो कौन सी शर्तें थी और अब्राहम के जीवन के द्वारा हमने ये सारी बातें देखी। We saw that first of all, he was a man of faith. और सबसे पहले हमने देखा कि वो विश्वास का मनुष्य था। Then we saw that he was also a man of obedience. और फिर हमने ये भी देखा कि वो आज्ञाकारिता का मनुष्य था। Thirdly, we saw that he was a dweller of tents. और तीसरी बात हमने देखी कि वो तंबू में रहने वाला था। And fourthly, we saw that he was a man of fourfold altar in his life. और चौथी बात हमने ये भी देखी कि 4 प्रकार की वेदी उसके जीवन में थी, ऐसा वो मनुष्य था। And then we saw that he was also a man of Mamre, or dweller of Mamre. और फिर हमने देखा कि वो ममरे का निवासी भी है। And then further we saw, sixthly, that he was a man of an exemplary humility. और छठवीं बात हमने ये भी देखी कि बहुत ही अनोखी नम्रता ऐसा रखने वाला वो मनुष्य था। And then we saw that he was also a selfless man and also having concern for others, the needs of others. और हमने ये भी देखा वो निस्वार्थी ऐसा मनुष्य था और दूसरों की आवश्यकताओं के लिए चिंता रखने वाला था। And in that we also saw that he was also a man of great hospitality. और उसमें हमने ये भी देखा कि वो बहुत ही बड़ाई से पहुनाई करने वाला व्यक्ति है। And then the eighth thing that we have to note in his life is that Abraham was a man of fourfold separation. और 8वीं बात जो उसके जीवन में हमें देखनी है वो ये है कि वो 4 प्रकार की अलगावट का मनुष्य था। So last week we saw the first 2 separations in Abraham's life. और पिछले सप्ताह जो पहले 2 अलगावट अब्राहम के जीवन में है उसे हमने देखा। We saw these 4 separations involved 4 very important persons in his life. और हमने ये भी देखा कि ये जो 4 अलगावट उसके जीवन में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के प्रति है। He also loved them. और उनसे वो प्रेम भी करता था। But if he had to become the friend of God, he had to separate himself from these 4 important people whom he loved. लेकिन अगर उसे परमेश्वर का मित्र बनना है तो ये जो 4 महत्वपूर्ण लोग जिनसे वो प्रेम रखता है उनसे उसे अलग होना पड़ा। We saw they all speak about the spiritual separation, this fourfold spiritual separation. We also have to go through to become ultimately the friends of God. और इससे ये प्रकट होता है कि वो 4 प्रकार की आत्मिक अलगावट जिसमें से हमें भी जाना है ताकि हम परमेश्वर के मित्र बन जाए। So we saw last time that first of all he had to separate himself from Terah, his own father. और पिछले समय सबसे पहले हमने देखा उसके स्वयं के पिता तेरा से उसे अपने आप को अलग करना पड़ा। That was because spiritually Terah speaks about the old man and the old nature. और ये इसलिए क्योंकि आत्मिक रीति से तेरा जो है वो पुराना मनुष्य और पुराने स्वभाव को प्रकट करता है। As long as the old man and the old nature is given place in our lives, the old man, the old nature dominates through the flesh in our lives. और जब तक ये पुराना मनुष्य और पुराने स्वभाव को हमारे जीवन में जगह दी जाती है तो ये हमारे जीवन के ऊपर ऐसा अधिकार करता है, शरीर के द्वारा हमारे जीवन पर अधिकार चलाता है। And that is why we saw this flesh has to be crucified in our lives. और इसीलिए हमने देखा कि शरीर को हमारे जीवन में क्रूस घातित करना है। Not only crucified, the old man, the old nature, the acts of the flesh must also be buried by faith. ना केवल पुराने मनुष्य पुराने स्वभाव को क्रूस घातित करना है, लेकिन जो ये शरीर के काम है उनको भी विश्वास के द्वारा गाड़ देना है। When anyone dies, he needs to be buried also.
और जब कोई मर जाता है तो उसको गाड़ा जाना भी जरूरी है, Otherwise, there will be a very severe consequence of that and impact of that body or corpse which is dead. और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो मरा हुआ शरीर है, मृतदेह है, उसका बहुत ही बुरा हाल होगा और भयंकर ऐसा परिणाम उसका होगा। So, by faith, we are to not only crucify the old man, but also he must be buried in our lives. तो विश्वास के द्वारा पुराने मनुष्य को ना केवल क्रूस पे चढ़ाना है, लेकिन हमारे जीवन में उसको गाड़ देना भी जरूरी है। Otherwise, we cannot go on to Canaan, but will remain only in Haran, which speaks about barrenness and unfruitfulness. और अगर ऐसा है तो हम कनान में नहीं जा सकते, लेकिन हारान में ही रह जाएंगे, जहां पर ऐसा फल रहित ऐसा है और सूखी भूमि जो है। Then, secondly, we saw Abraham had to separate himself from Lot, his brother's son. और दूसरी बात हमने देखी कि लूत उसका जो भतीजा है, उससे अब्राहम को अपने आप को अलग करना पड़ा। That was because Lot speaks about carnality and a carnal man. और लूत जो है वो शारीरिकता को और शारीरिक मनुष्य को दर्शाता है। We saw about 8 manifestations of that carnality in Lot. और लूत के जीवन में इस शारीरिकता कैसे 8 रीति से प्रकट होती है, ये भी हमने देखा। Even Abraham did not know nor realize the danger of Lot going along with him. और लूत को अपने साथ लेकर जाने का जो खतरा है, वो अब्राहम भी उससे परिचित नहीं था। The Lord knew it, but लेकिन प्रभु उसे जानता था, and that's why he allowed that strange situation, a very difficult and painful situation in the life of Abraham, to take away Lot from his life. और इसलिए वो बहुत ही विचित्र ऐसी परिस्थिति और जो बहुत ही कठिन थी, उसे अब्राहम और लूत के जीवन में प्रभु ने अनुमति दिया ताकि लूत उससे अलग हो जाए। And this is the reason why we as believers, when we go through some strange circumstances, difficult and painful circumstances, we need to ask this question, why Lord this? और इसी कारण से हम विश्वासी भी जब को बहुत ही ऐसी विचित्र और कठिन परिस्थितियों से जाते हैं, तब हमें भी ऐसा प्रश्न पूछना है कि प्रभु जी ऐसा क्यों? Maybe you are praying, but you're not getting the deliverance from that situation. हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उस परिस्थिति से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा। There is no way out through that tunnel in your life. और वो जो एक ऐसा टनल के नाई है, उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता ही आपके जीवन में नहीं। Then, dearly beloved, in all humility, we should go to the Lord and ask, Lord, what for? You are prolonging this situation, this painful circumstance in my life. तब प्रियो बहुत ही नम्रता से प्रभु के पास जाकर ये पूछना है कि प्रभु जी क्यों ये ऐसा है, इस कठिन परिस्थिति को इतना देर तक मेरे जीवन में रहने के लिए क्यों आपने रखा है। Don't ask the Lord to remove that situation when you find that he is not removing it for quite some time. और जब बहुत देर तक प्रभु उस परिस्थिति से आपको छुटकारा नहीं दे रहा, तो उसके लिए छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना मत करिए। Ask the Lord the purpose of that situation in your life. लेकिन उस परिस्थिति का जो उद्देश्य है आपके जीवन में, उसको आप जानने के लिए आप प्रार्थना करिए। Then the Lord may perhaps show to you it is because of the lot in your life, and he'll show you what that lot is, where that lot is, and how that lot has come in your life. और तब प्रभु जी उस लूत को आपको दिखाएगा, प्रकट करेगा कि आपके जीवन में वो कौन सा लूत है, वो कहाँ पर है और कैसे उसने आपके जीवन में प्रवेश किया है। So Abraham had to separate himself from Lot. तो अब्राहम को ऐसे लूत से अपने आप को अलग करना पड़ा। And then we saw the results of the separations also. और तब आगे जाकर इस अलगावट का जो परिणाम है, उसे भी हमने देखा। Now, as the Lord helps us, let us go through the third separation and the fourth separation this evening. और अब जैसे प्रभु हमारी सहायता करता है, वो तीसरी और चौथी अलगावट इस शाम के समय हम देखेंगे। Now, after Lot was separated from Abraham in chapter 13, अब 13 अध्याय में जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, and also as we move on to chapter 14, we find a great victory that Abraham could accomplish for the first time in the first battle
the first and only battle he faced. तब आगे जाकर 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक और जो पहला और एक ही युद्ध जो अब्राहम के जीवन में था, जहां पर उसने लड़ाई की, तो कैसे उस युद्ध में बड़ा विजय उसे मिला। And then when we come to chapter 15, और फिर जब 15 अध्याय में हम आते हैं, see what we read in verse 1. पहले वचन में हम क्या पढ़ते हैं। Yes, brother. इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। See, the word of the Lord is coming to him. It says, after these things. तो प्रभु का वचन उसके पास आता है और कहता है कि इन बातों के पश्चात, That is after the separation of Abraham from Lot. तो ये जब अब्राहम के जीवन से लूत का जो अलगावट हुआ उसके पश्चात होने वाली बात है। And then after he got that victory in the battle in chapter 14. और 14 अध्याय में जो बड़ी लड़ाई में उसको जो बड़ा विजय मिला, उसके बाद And then after his encounter with Melchizedek, the king of Salem. और उसके बाद मलकीसेदेक जो सलेम का राजा है उसको भेंट करने के बाद, And then also his encounter and the offer that he received from the king of Sodom in chapter 14 and verse 22. और उसके बाद सदोम के राजा ने जो उसको उसके सामने जो ऐसा ये उसको बताया, उसके बाद की ये बात है। So the Lord knows everything about us and he looks straight into our heart. तो प्रभु जो है हमारे बारे में सब कुछ जानता है और वो सीधा हमारे हृदय में देख सकता है। And that is the reason why in chapter 15 verse 1 the Lord is telling Abraham not to fear. और इसी कारण से 15 अध्याय 1 वचन में यहोवा अब्राहम को कह रहा है कि हे अब्राहम मत डर। Why does he say that? और क्यों वो ऐसा कहता है? Perhaps Abraham was entertaining a fear of the future, thinking, supposing something were to happen to me like what happened to Lot, what would happen to me? और अब्राहम ऐसा भविष्य के बारे में सोच रहा था कि अगर लूत के साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी अगर हो जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा। When Lot was taken into captivity, I and my servants could go and deliver Lot and his people. जब लूत को ऐसे बंदुआई में लेकर गए तो मैं और मेरे दास जाकर उसको उस बंदुआई से छुड़ा सके। If I and my servants are taken captive along with Sarah my wife, who will come to our rescue? लेकिन अगर मुझको, मेरे दासों को, मेरी पत्नी सारा के साथ हम सबों को अगर इस बंदुआई में कोई लेकर जाएगा तो कौन हमें बचाने के लिए आएगा? And then secondly, perhaps I think like this, perhaps he had a sense of regret as to why at all he should have refused what the king of Sodom offered him. और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि उसने मन में सोचा होगा कि जो सदोम का राजा उसे देना चाहता था उसको उसने इनकार क्यों किया? Isn't it me that got the victory for Lot? और क्या ये मैं नहीं जिसने लूत के लिए विजय प्राप्त किया? Should I not have taken at least a part of the spoil which I am worthy of? और वो जो ऐसे विजय की जो सामान जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा हिस्सा मैं लेना नहीं चाहिए था क्या? So maybe I may be wrong also. Maybe he was entertaining these thoughts. और मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऐसे विचार उसके मन में थे। But the Lord knows our mind. He knows our thoughts. He knows our heart. लेकिन प्रभु हमारे मन को जानता है, हमारे विचारों को और हमारे हृदय को भी जानता है। Because the word of God says, He knows my thoughts afar off. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो दूर ही से मेरे विचारों को जान लेता है। And in John chapter 2 we read, He knows what is in man, right inside the heart of man. और यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय वो जानता है कि मनुष्य के भीतर क्या है, मनुष्य के हृदय के भीतर क्या है। So to dispel his fear that he was entertaining, the Lord is telling Abraham, fear not, Abraham.
तो जो भय अब्राहम के मन में था उसको हटाने के लिए प्रभु अब्राहम से कह रहा है, हे अब्राहम मत डर। And then secondly, he says, don't regret about what you have given away, refused and rejected from the king of Sodom. और फिर वो कहता है कि तू उस सदोम के राजा का जो तूने इनकार किया है उसके कारण तू दुख मत मना, उसके कारण तू खेदित मत होना। So these three things are to be very carefully noted in this verse. तो इस वचन में ये जो तीन बातें हैं वो बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें जाननी है। First of all, fear not, to dispel his fear. सबसे पहले है अब्राहम मत डर, ताकि उसके भय को वो हटा दे। Then secondly, the Lord says, I am thy shield. और दूसरी बात प्रभु से कहता है कि मैं तेरी ढाल हूँ। So the shield speaks about safety and protection. तो ये जो ढाल है वो सुरक्षितता को और ऐसी रक्षा को प्रकट करती है। We know in 1 Samuel chapter 17, when Goliath came against the children of Israel, he was not only tall and strong and had a very good armor, but he made sure that a man would carry a shield and go ahead of him. पहला शमूएल 17 अध्याय में हम जानते हैं जब गोलियत इस्राएल के लोगों के सामने आया तो ना केवल वो बहुत ही ऊंचा और ऐसा शक्तिमान था, लेकिन वो युद्ध के हथियार वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसने ये भी देखा कि कोई एक मनुष्य उसके सामने ढाल को लेकर जाता है। Why the ढाल was required? और क्यों वो व्यक्ति उसके लिए ढाल लेकर जाता था? Without the ढाल, that strong champion would be defenseless. और अगर ऐसी ढाल नहीं है तो वो शक्तिशाली जो योद्धा है उसके लिए कोई भी उसके लिए सुरक्षितता नहीं रहेगी। The Lord knows that. और प्रभु इसे जानता है। And that is why he doesn't tell Abraham, Abraham, I'll provide an angel to be with you constantly as your shield. और इसलिए वो अब्राहम से ये नहीं कहता कि हे अब्राहम मैं एक स्वर्गदूत हमेशा तेरे साथ रखूंगा तेरी ढाल के होने के रूप में। See, the creator of this whole universe, the King of Kings and the Lord of Lords, the Almighty God, the offer he is making to Abraham, and he says, Abraham, I myself will be your shield. और ये जो सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर अब्राहम को क्या बता रहा है? हे अब्राहम मैं तेरे लिए ढाल हूँ। What more Abraham requires, and what does he lack? What does he lack also? अब और अधिक अब्राहम को क्या चाहिए, किस बात की कमी उसे है? And then thirdly, I shall be your exceeding great reward. और तीसरी बात, मैं तेरा बहुत ही बड़ा प्रतिफल हूँ। The Lord is placing himself in the hand of Abraham as his great reward. और परमेश्वर अपने आप को स्वयं को अब्राहम को दे रहा है, कह रहा है मैं ही तेरे लिए बड़ा प्रतिफल हूँ। Can there be a greater reward than this, dearly beloved? तो प्रियो, क्या इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रतिफल हो सकता है? Now this is not only Abraham's privilege, it is a privilege of every one of us also. तो ना केवल ये अब्राहम को मिला हुआ बड़ा ऐसा आदर है, लेकिन ये हम सबों को ऐसा बड़ा मिला हुआ आधिक्यता है, आदर है। Are you entertaining any regret because of your faith in the Lord, because of the sacrifices you have made for the Lord, for the things you have left away for the sake of the Lord? Take courage. The Lord is going to be your reward. तो जो प्रभु के ऊपर विश्वास के कारण जो बातों को आपने गवाया है, जो बलिदान आपने प्रभु के लिए किया है, उसके कारण क्या आप खेदित हो रहे हो? तो आप ध्यान करिए, ध्यान पूर्वक देखिए कि परमेश्वर प्रभु स्वयं आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। Our Lord is nobody's debtor, dearly beloved. हमारा प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं है प्रियो। He will give you and reward you more than what you are giving to the Lord and doing for the Lord and sacrificing for the Lord. तो जो आप प्रभु के लिए करते हो, जो उसे देते हो, जो बलिदान उसके लिए करते हो, उससे भी बहुतायत से अधिक प्रतिफल वो आपको देगा। Oh, now Abraham is greatly encouraged. और अब अब्राहम बहुत ही हियाव को पाता है। But again, a small string of doubt comes in within him.
लेकिन फिर एक और थोड़ा सा संदेह उसके मन में आता है। He says, Lord, all this what you're saying is good, but I'm without a child. What is the use of your giving me reward and being a shield for me? और वो कहता है, प्रभु जी ये सब आप बोल रहे हो ये तो अच्छा है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं, तो ये आप मेरे को बड़ा प्रतिफल दोगे और मेरे लिए ढाल बन जाओगे, इसका क्या अर्थ हो रहेगा। And even Abraham is going a step forward and suggesting to the Lord that Eliezer may become the heir of all that he has. और एक कदम आगे जाकर प्रभु को ये सूचित अब्राहम कर रहा है, कह रहा है कि उसके पास जो कुछ भी है उसका वारिस एलिएजर बन जाएगा। But the Lord would not approve of or agree to the suggestion of Abraham. लेकिन जो अब्राहम उसको सूचित कर रहा है वो अब्राहम और प्रभु उसको नहीं स्वीकार करता। In verse 4 he says, no, not so Abraham, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thy heir. 4 वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। And then he brought him out and asked him to look at the sky and see whether he can count the numbers of stars. और फिर उसको उसने बाहर लेकर आया और कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारंगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। Abraham said, Lord, how can I do this? I और cannot do it. अब्राहम ने कहा, प्रभु जी ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। Verse 5, last portion he says, so shall thy seed be. 5 वचन आखिरी भाग, तेरा वंश ऐसा ही होगा। Now see what we read in verse 6. अब 6 वचन में हम क्या पढ़ते हैं। Yes, brother, read. उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिरा। His faith is increasing now. अब उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है। He is coming out victoriously in the test of faith. और विश्वास की परीक्षा में विजय पाकर वो बाहर आ रहा है। He simply trusted and believed in the Lord and his words. और प्रभु और उसके वचनों में बहुत ही सरलता से उसने विश्वास किया। So he's become victorious in his life of faith. तो उसके विश्वास के जीवन में वो जय पाते जा रहा है। He has also become strong in his life of faith. और विश्वास के जीवन में और भी अधिक बलवंत होते जा रहा है। Now he is unshaken in his life of faith. और अब उसके विश्वास के जीवन में कोई उसको उसके विश्वास में वो डगमगा नहीं सकता। But the enemy Satan is not able to take this. लेकिन शैतान जो है इसको सह नहीं पा रहा। So leaving Mr. Abraham is going to Mrs. Abraham now. तो अब अब्राहम को छोड़कर वो अब्राहम की पत्नी सारा के पास जाता है। Oh, if Satan observed, now he cannot go near anywhere Abraham because of his strong faith. अब शैतान को ये बात समझ में आई कि अब्राहम का जो बहुत ही स्थिर और बलवंत विश्वास है उसके कारण वो उसके निकट नहीं जा सकता। Then Satan saw a candidate in the house of Abraham itself, namely in Sarah. तब शैतान ने अब्राहम के घर में ही एक पात्र को देखा जो उसकी पत्नी सारा है। Oh, I will not come to Abraham, but I know where to go. हाँ, मैं तो अब्राहम के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ किसके पास जाना है। And before he could touch Sarah with regard to her life of faith and to intervene in the divine plan of God, he had already made the ground. He has prepared the ground and done the spade work already. और सारा के विश्वास के जीवन में प्रवेश करने से पहले और परमेश्वर की जो बहुत ही स्वर्गीय प्रणाली है उसमें हस्तक्षेप करने से पहले उसने पहले से ही जमीन का जो काम है वो कर दिया था। This has taken place already in chapter 12, the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में ये पहले ही हो गया है। We know that there was a famine because of which Abraham went down to Egypt. हम जानते हैं कि एक बड़ा अकाल पड़ा जिसके कारण अब्राहम मिस्र देश में नीचे चला गया। He not only went down to Egypt, he also came out of Egypt. ना केवल वो मिस्र में चला गया लेकिन उससे बाहर भी निकल के आया। But his going down to Egypt was fully exploited by Satan. लेकिन जो उसका मिस्र में नीचे चला जाना उसका पूरा फायदा शैतान को हुआ। In that he inducted Hagar, unknown to anyone,
in the life and the family of Abraham and Sarah. और उस परिस्थिति में हागार हजीरा जिसको कोई जानता नहीं था, उसको अब्राहम और सारा के कुटुंब में उसने मिला दिया, Nobody knew that. और कोई भी इसे नहीं जानता था। And Satan would not use Hagar immediately, but kept her hidden for quite some time. और हाजिरा को तुरंत शैतान ने उपयोग नहीं किया, लेकिन कुछ बड़ी देर तक उसको छिपा के रखा। This is how the enemy worked later on also among the children of Israel. और आगे जाकर भी इस्राएल के संतान में ऐसे ही शत्रु ने काम किया है। Again, in Exodus chapter 12, as we read about the departure of the children of Israel from Egypt, और निर्गमन 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि कैसे इस्राएल के संतान मिस्र देश से बाहर निकले, they were coming out with great joy out of the land of Egypt. तो बड़ी आनंद से वो मिस्र देश से बाहर आ रहे थे। And we read there, Satan very cleverly, very subtly sneaked in the mixed multitude to go along with the children of Israel. और हम देखते हैं बड़ी चतुराई से शैतान ने ऐसा किया कि वो जो इस्राएल की संतान के बीच में ऐसी मिली जुली प्रजा को मिला दिया ताकि उनके साथ वो भी बाहर निकल जाए। And only later on, by and by, slowly and gradually and regularly, he was using this mixed multitude to make the hearts of the children of Israel to turn back to Egypt again and again. और आगे जाकर दिन प्रतिदिन और ऐसा धीरे धीरे करके ये जो मिली हुई प्रजा का उपयोग शैतान करता रहा, और धीरे धीरे ऐसा उपयोग उसने उनका किया कि इस्राएल की संतान का जो हृदय है वो फिर से मिस्र की ओर आकर्षित होने लगा। So dearly beloved, how careful we have to be with every move in our spiritual lives. तो प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में हर एक चाल के बारे में कितना अधिक हमको सतर्क रहना है। We have to be particularly careful about the Egypt and the Egyptians, which speaks about the world, people of the world, the things of the world, the pleasures and the attractions of the world. और विशेष करके मिस्र जो इस संसार को दर्शाती है, तो इस संसार की जो चीजें हैं, संसार के जो लोग हैं, संसार के जो रीति रिवाज है, संसार के जो सुख है, इनके विषय में बहुत ही ज्यादा सतर्क हमें रहना है। And now see what is happening in chapter 16. और अब 16 अध्याय में क्या हो रहा है हम देखते हैं। At the right and the appropriate time, when Sarah was very low in her life of faith, in total discouragement, she has given up. At that time, he is bringing this hidden Hagar before her. तो शैतान के अनुसार जो योग्य समय है वो उस समय में जब सेरा बहुत ही निराश हो गई है, बहुत ही दुखी हो गई है, ऐसे समय में इस हाजिरा को उसके जीवन में वो जिसको छिपा के रखा था उसको सामने लेकर आ रहा है। Satan also waits patiently to do his subtle work in our lives, dearly beloved. तो शैतान भी बहुत धीरज से वो रुका रहता है, बाट जोते रहता है कि कैसे उसके चतुराई का जो ऐसी छिपी हुई बातों से जो चतुराई का काम है वो कैसे हमारे जीवन में करे। This thought doesn't come to, Satan does not put it in the mind of Abraham, but in the mind of Sarah. और ये जो विचार है शैतान ने अब्राहम के मन में नहीं दिया, लेकिन सारा के मन में दिया। Because she is the weaker vessel. क्योंकि वो ऐसी कमजोर पात्र जो है। Oh, Satan is very experienced because he touched the very first weaker vessel in the book of Genesis and chapter 3, and he was able to overcome, and therefore using the same strategy here also. तो शैतान बहुत ही चतुर है, जो सबसे पहला ऐसा कमजोर पात्र उत्पत्ति 3 अध्याय में जो हवा के पास वो चला गया, और उसी रणनीति को यहाँ पर भी वो दोहरा रहा है। We know the entire story here, how she influenced, forced Abraham, and because of that, Ishmael was born to both of them. और हम जानते हैं कि कैसे उसने अब्राहम को इस प्रभावित किया, और जिसके कारण इश्माएल जन्म लिया है। Ishmael was not in the plan and purpose of God. और इश्माएल जो है वो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की प्रणाली में नहीं था।
just in the previous chapter, the Lord said, no, one who will come out of thy bowels, he will be your heir. और पिछले ही अध्याय में प्रभु ने कहा था, नहीं, जो तेरे ही निज प्रजा होगा वो तुझसे ही जन्मेगा। See how Satan is influencing Sarah to influence Abraham and to make him fall to this plan and strategy. और हम देखते हैं कैसे शैतान यहाँ पर सारा को प्रभावित कर रहा है ताकि वो अब्राहम को प्रभावित करे और इस शैतान की युक्ति में वो फंस जाए। Ishmael speaks about the substituted plan of God in Abraham's life. और इश्माइल जो है वो परमेश्वर की जो योजना है उसको बदल देना, उसको तब्दील कर देने को दर्शाता है अब्राहम के जीवन में। And the effect of that we are seeing even till today, dearly beloved. और उसका जो परिणाम है हम आज भी देख रहे हैं प्रियो। If there was no Ishmael, there would not have been the enemies for the people of God even today. और अगर इश्माइल नहीं होता तो प्रभु के लोगों के लिए शत्रु आज भी नहीं होते। Because Ishmael was brought forth, even today, 2021 also, the people of God are encountering this problem. और क्योंकि इश्माइल ने जन्म लिया है, इसी कारण आज के दिन भी 2021 में भी परमेश्वर के लोगों को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। Are you also substituting the plan of God with your own wisdom, with your plan, with your strategy to meet your immediate needs? तो क्या आपकी जो अभी की आवश्यकता है उसको जल्दी से पूरा करने के लिए क्या परमेश्वर के योजना को आप अपनी योजना से उसको बदल रहे हो? परमेश्वर की योजना को अपने विचारों से, अपनी योजना से और अपनी बुद्धि से आप बदल कर तब्दील कर रहे हो? Through that, dearly beloved, on the one hand, you will be grieving the Lord. On the other hand, you are reaping regret for yourself. You are going to reap regret for yourself. और अगर ऐसा करोगे तो एक तरफा आप प्रभु को खेदित करोगे और दूसरी ओर आप अपने आप के लिए, स्वयं के लिए बहुत ही ऐसा मतलब पश्चाताप आप करोगे, जो आपने किया है उसका बहुत ही दुख और खेद आपको होगा। God forbid that we substitute the plans of God with our own plans. प्रभु ऐसा होने न दे कि हम अपनी ही विचारों को और अपनी प्रणाली को प्रभु के योजना से और प्रणाली से बदल दे। These are the areas where we have to be watchful and praying to be prevented by enemy's attack. और ये वो सारा क्षेत्र है जहां पर हमें जागरूक रहना है, प्रार्थना करना है ताकि शत्रु से हम बचे रहे। And then after this, we read in chapter 17 and verse 1. और इसके बाद 17 अध्याय 1 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। At the age of 99, the Lord is appearing to Abraham and speaking to him again. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको फिर से दर्शन देकर कहा। In verse 1, last portion we see the Lord told him, walk before me, Abraham, and be thou perfect. और पहले वचन के आखिरी भाग में ऐसा कहता है प्रभु से, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। How sad, isn't it? ये कितना दुखी है ना। The Lord could not find this great man of God in the perfection that he desired for him. और ये जो महान परमेश्वर का दास है वो प्रभु की योजना में नहीं चल रहा था और इसलिए प्रभु ने उसको उस योजना में नहीं देखा। Whereas the Lord gave us testimony and challenged Satan with regard to Job's life and said he's a perfect man, he could not say that about Abraham, his servant. और अय्यूब के बारे में शैतान को भी प्रभु ने चुनौती दिया और कहा ये अय्यूब तो बहुत ही सिद्ध मनुष्य है, लेकिन अब्राहम के विषय में वो ऐसा नहीं कह पाया। If this had to happen to Abraham, how cautious I and you have to be, lest this also takes place in our life. और अगर अब्राहम के साथ ऐसा हो सकता है तो आपको और मुझको कितना ज्यादा सतर्क रहना है ताकि ऐसी बात हमारे जीवन में ना हो। And then we see in the same chapter, see what Abraham is further doing in verse 18. और उसी अध्याय में आगे 18 वचन में अब्राहम क्या कर रहा है हम देखेंगे। Read that verse, brother.
और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। See, he is now seeking God's approval over his substituted plan. और जो अब्राहम का अपना स्वयं का बदला हुआ जो योजना है, बदला हुआ जो प्रणाली है, उसके अब्राहम चाहता है कि प्रभु उसके ऊपर मोहर लगाए। He is seeking the Lord's approval over the error and mistake that they both have committed. और जो गलती और जो जो ऐसी बड़ी गलती उन दोनों ने की है, अब्राहम चाहता है कि प्रभु उस गलती को स्वीकार करे और उसके ऊपर अपनी मोहर लगाए। Dearly beloved, this is what is happening among the believers today. प्रियो, आज विश्वासियों के बीच में भी ऐसा ही हो रहा है। Oh, we go about doing everything according to our desire, our convenience, our pleasure, to please others, and then we want God's approval, God's servants' approval, elders' approval. और हम जो है हमारी ही इच्छा के अनुसार और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए भी सारी बातें करते रहते हैं, हमारे ही विचारों को और इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रभु अपना मोहर लगाए और प्रभु के दास अपनी मोहर लगाए, और जो प्राचीन भाई है वो भी उसको स्वीकार कर ले। Oh, dearly beloved, may the Lord be gracious from making this blunder and error in my life and your life. प्रियो, प्रभु बहुत ही करुणा अनुग्रह हम पर करे और ऐसी गलती आपके और मेरे जीवन में करने से हमको वो रोके। And then see what the Lord's answer to this proposal. और ये जो अब्राहम प्रभु को विनती करता है, उसको प्रभु क्या क्या जवाब देता है। Verse 19, he says, "No, Abraham, Sarah, thy wife, shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him." 19 वचन, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। The Lord's plans and his will cannot be altered at any time or at any cost. प्रभु की जो योजना है और उसकी जो इच्छा है, वो किसी भी समय और किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकती। Now, after this Ishmael was born, after he started growing, when the time came, the Lord desired separation of Abraham from Ishmael also. अब ये जब इश्माइल ने जन्म लिया और वो बढ़ने लगा, तो वो उचित समय आया, और तब प्रभु ने चाहा कि अब्राहम के जीवन से ये इश्माइल भी है वो भी अलग हो जाए। And so what is happening here? और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? As we read these verses in chapter 21, और 21 वचन अध्याय में इन वचनों को हमने पढ़ा। the Lord allowed Abraham to experience the consequences of his bringing forth Ishmael in their lives. और इश्माइल को इस तरह से जन्म देकर उनके जीवन में लेकर आने का जो परिणाम है, उसको अब्राहम को भुगतना पड़ा, और प्रभु ने ये उसके जीवन में आने दिया। We see 4 such consequences in chapter 21 in the verses that we read. और 21 अध्याय के इन वचनों में जो हमने पढ़ा, वो इस बात का परिणाम हम देखते हैं। First of all, verse 9. सबसे पहले 9 वचन, Yes, brother. तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। The son who was born, Ishmael, is now mocking. अब ये जो इश्माइल जन्म लिया है वो हंसी कर रहा है। Both husband and wife are being mocked by their son whom they brought forth as a substitute to the plan of God. और दोनों पति पत्नी दोनों को ये जो उनका बेटा जिनको उसने एक परमेश्वर की प्रणाली को बदलकर जिसको जन्म दिया है, हम देख रहे हैं कि वो उनकी ठट्टा कर रहा है, हंसी कर रहा है। What a painful and shameful experience they had to go through. और कितनी वेदना और लज्जा का अनुभव उनके लिए रहा। Then the second consequence we read in verse 10, there is now a great threat for the heirship of Isaac himself. और जो दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि जो
इसहाक की जो मिरास है उसके लिए भी यहाँ पर धोखा निर्माण हुआ है। See, Isaac is already born now. हम देखते हैं कि यहाँ पर इसहाक ने जन्म लिया है And now Sarah is now realizing and opening her eyes. और अब सारा जो है वो जागरूक हो रही है अपनी और वो समझ रही है। And all that, Hagar. Now Hagar, what she had to do is, she had to just go to the court and present her case herself, even without a lawyer also. अब हाजिरा को क्या करना है, उसको तो किसी वकील की भी आवश्यकता नहीं, केवल कोर्ट में जाके अपना जो केस है उसको सामने रखना है। She will ask the first question. और वो सबसे पहला प्रश्न पूछेगी, My Lord, ask this man, my husband, who was born to both of us. मेरे प्रभु, ये मनुष्य मेरे पति, इसको आप पूछिए कि कौन है जो हम दोनों से जन्मा है। Abraham has to answer, it is Ishmael and not Isaac. और अब्राहम को ये जवाब देना पड़ेगा कि वो इसहाक नहीं इश्माएल है। So who is the firstborn, sir? तो जो पहलौठा जो पुत्र है वो कौन है? It is not Isaac, it is again Ishmael. वो इसहाक नहीं, वो तो इश्माएल है। And who has the claim and authority of being the firstborn? और पहलौठे का जो अधिकार है किसके पास है, कौन उसे दावा कर सकता है? It's again Ishmael. वो भी इश्माएल ही है। So everything has to be given over, handed over, passed over to Ishmael. तो सारी बातें जो है मिरास में इश्माएल की हो जाती है, उसी को देना पड़ेगा। Oh, there is a great threat for heirship of Isaac. तो इसहाक के जो वारिस होने के लिए भी बड़ा धोखा यहाँ पर निर्माण हुआ है। So there is a danger of Isaac losing this firstborn privileges. और पहलौठे का जो अधिकार है वो भी खोने का खतरा इसहाक के लिए यहाँ पर निर्माण हुआ है। Sarah realized that her eyes are open now, and therefore she wants this son of the bondwoman to be sent away along with her. सारा इस बात को जान गई, उसकी आंखें खुल गई और वो चाहती है कि इस दासी को और उसके पुत्र को वो बाहर निकाला जाए। And the third consequence, we read in verse 11 that it was a grievous thing for Abraham. और 11 वचन में जो तीसरा परिणाम हम पढ़ते हैं कि ये बात अब्राहम को बहुत ही बुरी लगी। He has to send away Hagar and her son. He has to separate himself from Hagar and Ishmael, who he is also his son. और हाजिरा को और उसके पुत्र को उसे बाहर निकालना पड़ा, और अब हाजिरा को और उसके पुत्र को जो उसका बेटा भी है उनसे अलगावट उसको करना पड़ा। And the fourth consequence we read in verse 21. और 21 वचन में जो चौथा परिणाम है हम पढ़ते हैं। See what Hagar is doing for her son Ishmael. हम देखते हैं हाजिरा अपने बेटे इश्माइल के लिए क्या कर रही है। She brought an Egyptian wife for him. उसने उसके लिए एक मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। Egypt will always go to Egypt. और जो मिस्र का है वो हमेशा मिस्र की ओर ही चला जाएगा। Egypt will always seek and love Egypt only. और मिस्र जो है वो हमेशा मिस्र को ही ढूंढने की कोशिश करेगा और उसी से प्रेम करेगा। Now there is a very danger of even Abraham and Sarah and all being taken away to Egypt also. और ऐसा भी अभी खतरा निर्माण हुआ है कि अब्राहम और सारा और बाकी के सारे वो भी मिस्र में वहां पर चले जाए। So the Lord allowed all this in Abraham's life. तो इन सारी बातों को प्रभु ने अब्राहम के जीवन में आने के लिए अनुमति दिया। And we thank God, Abraham paid heed to Sarah's suggestion and sent Hagar and Ishmael away. और हम आभारी है कि जो सारा ने उसे सलाह दी उसको अब्राहम ने सुन लिया और हाजिरा और इश्माइल को बाहर निकाल दिया। Are there Hagars and the resultant Ishmaels in your life? तो क्या आपके जीवन में ऐसे हाजिरा और उसके द्वारा जन्मे हुए इश्माइल क्या आपके जीवन में है? Are you guilty of Ishmaels in your life today? तो क्या आपके जीवन में ऐसे इश्माइल होने के विषय में आप दोषी हो?
And those Ishmaels are not in the Lord's divine and perfect will and plan. और ये सारे इश्माइल जो है वो परमेश्वर के सिद्ध योजना और प्रणाली में नहीं है। It is your own plan. It is your own substituted plan for the plan of God. और ये आपकी स्वयं की योजना है, परमेश्वर की योजना को आपने बदल कर तब्दील कर कर आपने स्वयं की योजना बनाई है। If you are guilty of that, you have to reap these consequences. और अगर इस बात के विषय में आप दोषी हो तो ऐसे परिणाम का सामना भी आपको करना पड़ेगा। But there is a ray of hope for you, provided you separate yourself from that Ishmael and Hagar. लेकिन अगर आप हाजिरा और इश्माइल से अपने आप को अलग करते हो तो आपके लिए एक आशा की किरण हो रहे। Now let us see the result of this separation through which Abraham went through. और ये जो अलगावट है इसका परिणाम क्या होता है, जिस अलगावट से अब्राहम गया, हम देखेंगे। We read that in the last two verses that we read of this chapter. और इस वचन के जो आखिरी दो अध्याय के जो आखिरी दो वचन है उसमें हम पढ़ते हैं। We see two things are happening here. हम देखते हैं दो बातें यहाँ पर हो रही है। First of all, in verse 33, Abraham goes on to plant a grove in Beersheba. सबसे पहले 33 वचन में अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया। The Beersheba is not only a place of covenant, as we see in the previous verses. और पिछले कुछ वचनों में जैसे हमने पढ़ा, बेरशेबा ना केवल एक वाचा का देश है, but also it is becoming a fruitful place, because here Abraham is planting a grove, meaning he began planting fruit-bearing trees there. और यहाँ पर वो बेरशेबा अभी फलवंत भी हो रहा है, क्योंकि अब्राहम यहाँ पर झाऊ का वृक्ष लगा रहा है, जिसका अर्थ है कि फल देने वाले वृक्षों को अब्राहम यहाँ पर लगा रहा है। See how good the Lord is. He's bringing him into a totally new experience. हम देखते हैं प्रभु कितना अच्छा है, बिल्कुल ही नए अनुभव में उसको लेकर आ रहा है। In addition to the previous experiences, including the tent life and the altar life, now he's going on to plant a tree to come into fruitfulness. और जो पहले अनुभव थे तंबू के विषय में, वेदी के विषय में, उसको वहां से लेकर लाया और यहाँ पर फलवंत होने का जो अनुभव है, फल लाने का जो अनुभव है, उसमें लेकर आ रहा है। And then in verse 34 we read that he sojourned in the Philistines' land many days. और 34 वचन में हम पढ़ते हैं, अब्राहम फलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। Philistines are the enemies of God. और जो फलिस्ती है वो परमेश्वर के शत्रु है। And he was able to sojourn in that land of the enemies, it says, not few days but many days. और ऐसे शत्रु के देश में कई दिनों तक, वो बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। Speaks about a victorious life and a conquering and overcoming life. और ये एक विजय देने वाला जीवन और जय पाने वाला और विजयी होने वाले जीवन को दर्शाता है। When you and I separate ourselves from our Ishmaels in our lives, come into the total plan and purpose of God, we not only become fruit-bearing, we also become victorious and overcomers in our life. तो जब आप और मैं ऐसे हमारे जीवन में जो इश्माइल है उनसे अपने आप को अलग करते हैं, परमेश्वर की सिद्ध योजना और इच्छा में आ जाते हैं, तो ना केवल हम फलवंत बनते हैं, लेकिन ऐसे विजय पाने वाले, जयवंत होने वाले हम बनते हैं। Oh, may the Lord bring us into this third experience of this third separation also. प्रभु करे कि ऐसा जो तीसरे अलगावट का अनुभव है उसमें प्रभु हमको भी लेकर आए। Now we come to the last separation of Abraham, separation from his promised and covenanted son Isaac. और अब जो आखिरी का जो अलगावट है अब्राहम के जीवन में, उसको प्रतिज्ञा का और वाचा का जो पुत्र इसहाक है उससे अलगावट होना पड़ा। By now, Abraham has become quite strong in his life of faith. और अब तक जो है अब्राहम अपने विश्वास के जीवन में बहुत ही बलवंत हुआ है। But this faith has to be approved by God. लेकिन ये जो विश्वास के ऊपर प्रभु की मोहर भी लगना जरूरी है। When do you get that approval? और कब जाकर ये मोहर लगेगी? Only when you pass through the quality control test in your life.
और ऐसा जो जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, मतलब उसका जो कितना योग कितना अच्छा है, कितना खरा है, परखा जाता है, तब जाकर ये होगा। The very good products that are available in the market, they go through tough quality control tests before they pass out from that company or organization. और ऐसे अच्छी अच्छी वस्तुएं जो बाजार में मिलती है, तो वो बाजार में आने से पहले उनके कंपनी में ऐसा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, मतलब जहां पर उनका कितनी वो अच्छी है उनको परखा जाता है, और तब वो बाजार में आती है। Those who are rejected or kept back, only those who pass through the quality test, they are sent forward and they fetch profits. और जो वस्तुएं इस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल होती है, उनको पीछे ही रखा जाता है, और जो उसमें से पास होकर आगे जाती है, वो ही बाजार में जाकर बिकती है, और उससे बड़ा मुनाफा होता है। Now the Lord is taking his servant, his precious servant, this father of faith, through that quality control test. और अब प्रभु अपने जो दास को, अपने बहुमूल्य दास को, इस विश्वास के मनुष्य को इस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से लेकर जा रहा है। We know everything about what is there in chapter 22. और 22 अध्याय में क्या है, हम सब इसको जानते हैं। Just let us see a few things before we close. और कुछ बातों को देखेंगे अंत करने से पहले। First of all, we have to note the specificity of this test in Abraham. और सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अब्राहम के जीवन में ये जो परीक्षा है, वो कैसी बहुत ही अनोखी और विशेष है। The Lord is very specific when he commanded Isaac to be offered. और जब प्रभु ने आज्ञा दी कि इसहाक को तो उस वेदी पर चढ़ा, तो प्रभु बहुत ही बारकाई से और विशेषता से ये बात कह रहा है। And we see in verse 1 that God did tempt Abraham. It is not tempt, God tested Abraham. और एक वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। So what is the test? तो ये परीक्षा क्या है? In verse 2 we read, he says, take thine only son, he says, take thy son, thine only son Isaac. और दूसरे वचन में वो कहता है कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को तू ले। And then he says, whom thou lovest. और फिर वो कहता है जिससे तू प्रेम रखता है। See how specific the Lord is about this. हम देखते हैं प्रभु इसके बारे में कितना विशेष करके और बारकाई से बात कर रहा है। If the Lord had told Abraham, go and offer your son Isaac on the altar, अगर प्रभु इस अब्राहम से कहता तो अपने पुत्र इसहाक को लेकर वेदी पर चढ़ा दे, between the two, Abraham would have as well chosen Ishmael and immediately offered him on the altar. और केवल अपने पुत्र को प्रभु कहता तो दोनों में से अब्राहम एक को चुनता और इश्माइल को उस वेदी पर चढ़ाता। But the laws were specific about Isaac. लेकिन प्रभु बहुत विशेषता से इसहाक का नाम यहाँ पर ले रहा है। At this point of time, the Bible scholars opine that Isaac was about 22 years old. और इस समय में जो बाइबल स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि इस समय तक इसहाक जो है वो 22 साल का था। And he is a promised son. और वो प्रतिज्ञा का पुत्र है। He is a son of the covenant. और वो वाचा का पुत्र है। He is the future hope of Abraham. और अब्राहम के भविष्य की आशा वो है। And also he was ready to take on the baton from his father and take care of the house. और अपने पिता से सारी जिम्मेदारियों को संभाल कर लेकर सारे घर को संभालने के लिए भी वो तैयार था। Now what is Abraham's response when this test was put to him? और जब ये परीक्षा उसके सामने रखी गई तो अब्राहम ने कैसे प्रतिक्रिया की? He came out victoriously, triumphantly, and proved that his faith can pass any test. हम देखते हैं अब्राहम बहुत ही विजय से और बहुत ही अच्छे से इस परीक्षा से वो बाहर निकल कर आया और उसने दर्शाया कि वो इस परीक्षा में जयवंत हो सकता है। That was because by that time Abraham has become very close to the Lord, and the Lord his friend became very precious, more precious than even his son Isaac. और इस समय तक
अब्राहम जो है वो बहुत ही प्रभु के लिए अनमोल हो गया था, और उसका मित्र प्रभु अब्राहम की दृष्टि में इतना मूल्यवान था, अपने बेटे इसहाक से भी ज्यादा मूल्यवान था। And that is why, as we saw in the commencement of the study itself, Abraham was well prepared, was willing to make this sacrifice, and he obeyed the Lord. और इस बाइबल अध्ययन के आरंभ में ही हमने देखा कि ये अर्पण करने के लिए अब्राहम तैयार था, और उसने प्रभु की आज्ञा को मान लिया। It was an implicit obedience on the part of Abraham. और अब्राहम के पक्ष में ये तुरंत किया हुआ आज्ञा पालन है। It was an unwavering, unshakable obedience on his part. और बिना कोई सवाल किए और बिना डगमगाए ऐसी आज्ञाकारिता अब्राहम की है। At the same time, it was also a secret obedience. और उसी समय ये एक गुप्त में किया हुआ आज्ञाकारिता भी है। And we also saw that it was a wholehearted, total obedience to the Lord. और हमने ये भी देखा पूरे हृदय से पूरा पूरा आज्ञाकारिता प्रभु के प्रति अब्राहम की है। Why did he do that? ऐसा क्यों उसने किया? Number one, he was prepared to give the most precious thing in his life to his most precious friend. सबसे पहले अपने जीवन में जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो अपने सबसे मूल्यवान मित्र को देने के लिए वो तैयार था। And then secondly, he considered that as an act of worship for the Lord. और दूसरी बात, ऐसा करने को अब्राहम ने प्रभु की आराधना करने समान जान लिया। See what we read about this particular thing in this chapter 22. 22 अध्याय में हम देखते हैं इसके विषय में हम क्या पढ़ सकते हैं। We already saw how eagerly, wholeheartedly he prepared himself for making this sacrifice. और हमने देखा कि कैसे उत्साह से और पूरे हृदय से इस अर्पण को चढ़ाने के लिए उसने कैसे तैयारी की। Only when he went on to show that obedience, we see in verse 4, then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। To the extent to which he obeyed, to that extent the revelation of the place was made known to Abraham. और जिस हद तक उसने आज्ञा को पालन किया, उस हद तक उस स्थान का प्रकाश और दर्शन अब्राहम को मिला। Now he is asking the servants to stay behind and is marching forward with Isaac, his son. और अब अपने सेवकों को पीछे रहने के लिए वो कहता है और अपने बेटे अब्राहम के साथ आगे चला जाता है। And see what he is telling in verse 5. और 5 वचन में वो क्या कह रहा है हम देखेंगे। Let us carefully read this verse as our dear brother reads it for us. ध्यान पूर्वक इस वचन को हम पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। Notice that word dandavat. और दंडवत इस शब्द को ध्यान दीजिए। That was what was for Abraham when he was offering his precious son Isaac. और जब अपने मूल्यवान पुत्र इसहाक को वो अर्पण कर रहा था, तो अब्राहम के लिए यही बात दंडवत करना समान था। Neither was it an act of compulsion, nor was he regretting for this request by the Lord or this command by the Lord. और ये करना उसके ऊपर जोर जबरदस्ती से वो कर रहा है ऐसा नहीं था। और ये जो प्रभु ने उसको कहा था, ये करने के विषय में अब्राहम खेदित और दुखी भी नहीं था। By offering Isaac, his only begotten son, his precious son, the covenanted son, his source of hope for the future, he considered it as nothing less than worshipping the Lord. और अपने पुत्र इसहाक को, जो उसकी भविष्य की आशा है, जो उसका प्रतिज्ञा का पुत्र है, जो उसके लिए बहुत ही मूल्यवान है, उसको इस तरह से अर्पण करना अब्राहम के लिए वो उपासना करने के समान या फिर दंडवत करने के समान था। This is how and this is where he has come to the pinnacle of pleasing his friend and satisfying him. और यहाँ तक वो इतनी ऊंचाई में आ गया है, इस हद तक वो आ गया है
कि इस हद तक वो जाकर ये सारी बातें करता है ताकि अपने मित्र को वो इस तरह से प्रसन्न करे। What a worship is this? और ये कैसी किस प्रकार की आराधना है? In the whole scriptures, apart from the sacrifice of the loving Father of his Son on the cross, there is no other sacrifice. There is no other worship in the scriptures as this. और सारे पवित्र शास्त्र में जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, जो पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा कलवरी क्रूस पर जो प्रभु यीशु ने किया, उसको छोड़कर उससे दूसरा कोई भी बलिदान अर्पण इसके समान नहीं। What a price he's paying, what a cost it involved him to worship and satisfy and please his heavenly friend. और अपने स्वर्गीय मित्र को प्रसन्न करने के लिए, तो संतुष्ट करने के लिए कितना बड़ा दाम वो चुका रहा है, कितनी बड़ी कीमत वो देने के लिए तैयार है। Have you pleased the Lord whom you are owning as your friend anytime to this extent? तो जिस प्रभु को, जिसको आप मित्र समान जानते हो, कभी किसी भी समय इस हद तक क्या आपने उसको प्रसन्न किया है? Could you touch the heart of the Lord your friend anytime, at least once, by your sacrifice and by your worship? और अपनी आराधना और अपनी बलिदान के द्वारा आपके मित्र प्रभु को, कि उसके हृदय को क्या कभी आपने स्पर्श किया है? How many times we have to be forced, we have to be coaxed, we have to be requested to worship the Lord. कितनी बार हमको जोर जबरदस्ती करके हमको ऐसा विनती करना पड़ता है ताकि हम प्रभु की आराधना करें। In that we are only receivers but not givers to the Lord like Abraham. और इस तरह हम केवल प्रभु से लेने वाले हैं, लेकिन अब्राहम की नाई प्रभु को देने वाले नहीं है। Dearly beloved, Abraham not only gave his tithes to Melchizedek, he gave this most precious thing as his worship in this chapter. प्रियो, अब्राहम ने ना केवल अपना दशांश मलकीसदेक को दिया, लेकिन अपने लिए सबसे मूल्यवान जो बात है इस अध्याय में उसको एक भेंट के रूप में उसको अर्पण कर दिया। It is through this act he received that stamping, passing that quality control test to be approved of God and to become his friend. और इस परीक्षा के द्वारा अब्राहम के ऊपर ऐसी मुहर लग गई, मतलब जैसे वो क्वालिटी कंट्रोल की जो टेस्ट रहती है उसमें से बाहर निकल कर आया और मुहर लग गई कि परमेश्वर का मित्र वो बन जाए। Let us see furthermore, just few more minutes, I'll finish, how he could touch the heart of the Lord itself through this offering. और कुछ समय थोड़ा और देखकर हम ये देखेंगे कि कैसे इस भेंट के द्वारा उसने प्रभु के हृदय को छू लिया। When Abraham was about to slay his son, when he had taken the knife in his hand, और जब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को मारने वाला था, उसने वो छुरा अपने हाथ में ले लिया था। see what we read in verse 11. 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Kindly notice carefully who is speaking to Abraham here in this verse. ध्यान पूर्वक आप देखिए इस वचन में अब्राहम के साथ कौन बातें कर रहा है। It is not the Lord. और वो प्रभु नहीं है। The Lord spoke to him only in verse 1 और प्रभु ने केवल पहले वचन में उससे बातें की and also verse 2. और दूसरे वचन में भी। But when we come to verse 11, it is not the Lord, it is the angel who is speaking to Abraham. लेकिन 11 वचन में जब आएंगे तब ये प्रभु नहीं है, लेकिन यहोवा का दूत उससे स्वर्ग से बातें कर रहा है। That is because it appears as if the Lord had no courage to talk to Abraham. और ये इसलिए क्योंकि ऐसे दिखाई देता है कि अब्राहम से बातें करने के लिए प्रभु के पास हियाव नहीं था। With this worship, with this offering, with this separation in his life, he touched the heart of the Lord, his friend. और ऐसी आराधना, ऐसे बलिदान और ऐसी अलगावट को अपने जीवन में लाने के द्वारा उसने अपने परमेश्वर के हृदय को छू लिया। And that's why perhaps the Lord told the angel, come on, rush down, go there to Abraham and stop him from slaying his son. और इसलिए प्रभु ने उस स्वर्गदूत से कहा कि जा, तू चला जा नीचे और अब्राहम को अपने पुत्र को वध करने से रोक लेना। And even as we come to verse 15, और जब हम 15 वचन में आते हैं, again it is not the Lord who is speaking, but the angel is speaking, but conveying
what the Lord wanted to tell Abraham. यहाँ पर भी प्रभु बातें नहीं कर रहा, लेकिन यहोवा का दूत उससे बातें कर रहा है और बता रहा है कि यहोवा क्या कहना चाहता है। What a worship, what a sacrifice this is. और ये कैसी आराधना है और कैसा बलिदान है। And as we already saw, it was also an act of great faith. और जैसे हमने पहले ही देखा, ये महान विश्वास का काम भी था। Because in the first instance, he is telling the servants there, I and the lad will go yonder, worship, and come again to you. क्योंकि पहली बार हमने देखा, वो अपने सेवकों से कह रहा था कि मैं और ये लड़का आगे जाकर दंडवत करेंगे और लौट कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। And to the difficult question that was asked by Isaac, again he says by faith, the Lord will provide. और जो सवाल इसहाक ने जो कठिन सवाल पूछा था, उसको भी वो विश्वास के द्वारा उत्तर देता है कि प्रभु उसका उपाय करेगा। Dearly beloved, the Lord has been watching from above, hearing the words of Abraham, seeing his actions, and seeing the intention of his heart. प्रियो, प्रभु ऊपर से देख रहा है, वो अब्राहम के जो अब्राहम को देख रहा है, उसके कामों को देख रहा है, उसका जो उद्देश्य है उसको देख रहा है और अब्राहम की बातें भी सुन रहा है। In our lives, what is the Lord beholding? और हमारे जीवनों में प्रभु कौन सी बातें देख रहा है? To what extent is he pleased with us? और किस हद तक वो हमसे इस तरह से प्रसन्न है? To what extent, like Abraham, we are touching the heart of the Lord? और किस हद तक अब्राहम की नाई हम परमेश्वर के हृदय को छू लेते हैं? Oh, may the Lord give us the grace to pass this test of faith in our lives also. प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हमारे जीवन में भी इस विश्वास की परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाए। And may the Lord give us the grace to separate ourselves from the precious Isaacs which we are clinging to in our lives today. और प्रभु हमें ऐसा भी अनुग्रह दे कि हमारे जीवन में जो मूल्यवान इसहाक है, जिसको हम पकड़े रहे हैं, उनसे भी हम अपने आप को अलग कर सके। I do not know what that Isaac is in your life. मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में वो इसहाक क्या है। Nor do you know the Isaac in my life that I have to bring on the altar. और आप ये भी नहीं जानते कि मेरे जीवन में वो क्या इसहाक है जिसको मुझे वेदी के पास लेकर आना है। But only when we bring that Isaac on that altar, only then we can touch the heart of the Lord, pass our quality test, and also be approved of God, and to get the stamp that you and I are the friends of God. लेकिन केवल तब जाकर जब हम उस इसहाक को वेदी पर लेकर आएंगे, तब हम उस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में हम पास हो जाएंगे। मतलब प्रभु हमको स्वीकार करेगा, हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाएगा और हम ऐसा परमेश्वर के मित्र कहला सकेंगे। Then finally, let us read the reward of this separation in verses 17 and 18 and close, please. अंत में इस अलगावट का जो प्रतिफल 17 और 18 वचन में हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। Kindly read, brother. इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारंगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हाँ, क्योंकि तूने मेरे बात मानी है। That is separation. और इसी को अलगावट कहते हैं। So what is the result of this separation? तो इस अलगावट का क्या परिणाम है? 3 things to be noted. 3 बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है। Verse 17, first part, the Lord says that in blessing I will bless thee. 17 वचन पहले भाग में प्रभु कहता है कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। Blessing upon Abraham. अब्राहम के ऊपर आशीष। And then in verse 18 we read, blessing through Abraham to all the nations of the earth. और 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएगी। Oh, what a great thing it is. तो ये कितनी महान बात है। Then secondly, in verse 17, the next part it says, in multiplying, I will multiply thy seed.
और 17 वचन के दूसरे भाग में कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारंगण के समान बहुगुणित करूंगा। Read the remaining part also, brother. और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारंगण और समुद्र के तीर की बालू Ah, के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। not only blessing, but there is also multiplication. ना केवल आशीष है लेकिन ऐसा उसको बहुगुणित करना भी है। And one of the man of God said, it is not just a simple multiplication, arithmetic multiplication. It is geometric multiplication, it seems. और किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, ना केवल ये मैथ्स का जो बहुगुणित करना है लेकिन ऐसा ज्योमेट्री का बहुगुणित करना है। It is not 2 into 2, 4, and again 2, 6, and it doesn't go that way. और 2 गुना 2 4 और उसके बाद 2 जोड़कर 6 ऐसा आगे नहीं बढ़ता। 2 into 2, 4, then again 4 into 4 becomes 16. It goes that way. लेकिन 2 गुना 2 4 और 4 गुना 4 16 ऐसा वो आगे जाता है। So that is how the Lord was going to multiply his seed. और इसी तरह से प्रभु उसके वंश को आशीषित कर रहा था। And then the word of God says two specific things are mentioned here. और परमेश्वर का वचन 2 विशेष बातों को यहाँ पर कहता है। This multiplication or blessing will be like stars of the heaven and sand which is upon the seashore. और ये जो बहुगुणित करना, अनगिनत करना, वो आकाश के तारंगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान रहेगा। Oh, there is a spiritual meaning here. और यहाँ पर एक आत्मिक अर्थ होता है। Stars are in the sky, and therefore they speak about the heavenly and spiritual blessings. और तारे जो आकाश में होते हैं और वो स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों को दर्शाते हैं। And the sand which is upon the earth speaks about our earthly and material blessings also. और इस समुद्र के तीर की बालू जो है वो इस पृथ्वी की और हम भौतिक आशीषों को भी दर्शाती है। Because the word of God says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज की खोज करो और ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। So we not only receive heavenly things, but also earthly things are also added. They are not subtracted. तो ना केवल स्वर्गीय आशीषें हमको मिलती है लेकिन भौतिक आशीषें भी जोड़ दी जाती है, उसको कम नहीं किया जाता। By placing your Isaac on the altar, by your separation from your Isaac in your life, you will not be put to loss. You will only stand to benefit and be blessed. और अपने जीवन में इसहाक को अलग करने के द्वारा, इसहाक को वेदी पर चढ़ाने के द्वारा आपको हानि नहीं होगी, आपको घटी नहीं होगी, लेकिन केवल आशीष ही आप पाओगे। We know this was abundantly fulfilled in Abraham's life. और हम जानते हैं अब्राहम के जीवन में ये बहुतायत से पूरा हो गया। So that will also be fulfilled in your life. और ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही पूरा होगा। So may the Lord bring us into such a fulfillment by our separation from our Isaacs. तो प्रभु ऐसी परिपूर्णता में हमको लेकर आए और हमको ऐसा वो लेकर आए, हमारे जीवन में इसहाक जो है उसको अलग करने के द्वारा ऐसी हालत में प्रभु हमें लेकर आए। Dearly beloved, may the Lord give us the grace to follow this simple but important 8 conditions and go on to become and to be called as the friends of God. प्रियो, प्रभु हमें ये आशीष दे और हमारी सहायता करे ताकि ये 8 शर्तों को हम पूरा कर सके और इस तरह से प्रभु के मित्र हम कहला सके। It is not impossible, but all things are possible with God and by the strength which is available to us. और ये नामुमकिन नहीं, लेकिन प्रभु के द्वारा और जो शक्ति सामर्थ जो वो हमें देता है उसके द्वारा सारी बातें संभव है। And as we look to the Lord to receive his grace and strength, we will be enabled to fulfill these conditions. और जैसे हम प्रभु की ओर देखते हैं, उससे बल पाते हैं, अनुग्रह प्राप्त पाते हैं, तो वो ऐसा हमको बलवंत करेगा
कि इन सारी शर्तों को हम पूरा कर सके। The Lord wants many Abrahams today. प्रभु चाहता है कि कई ऐसे अब्राहम आज के दिन हो, He wants to share his hearts with many Abrahams today. और अपने हृदय को कई अब्राहमों के साथ वो ऐसा बांटना चाहता है, He is in need of such Abrahams. और ऐसे अब्राहम जैसे लोगों को वो चाहता है। Will you offer yourself as such an Abraham to the Lord? तो क्या अब्राहम की नाई आप भी इस तरह से प्रभु को अपने आप को स्वयं को अर्पण करोगे? On his part, he is promising to be your friend. और वो अब उसके पक्ष में वो प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारा मित्र बनेगा। But will you, on your part, promise to be his friend? लेकिन क्या आप आपके पक्ष में उसके मित्र बनने की प्रतिज्ञा करोगे? Kindly make that commitment this evening. कृपया करके इस निर्णय को आप आज शाम को करिए, And the Lord will give you the grace to fulfill all these conditions. और प्रभु इन सारी शर्तों को पूरा करने के लिए आपको अनुग्रह देगा। Sir, you may kindly close in prayer and benediction. Sure. Brother Rohan, यस, shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Dearly beloved, as we heard the word of God, it is time for us, if you have been spoken to by the Lord, to make a commitment to the Lord. प्रियो, जैसे हमने परमेश्वर के वचन को सुना, हमारे लिए उचित समय है कि हम उसके प्रति एक निर्णय को और समर्पण को करें। Make a commitment tonight before you go to bed. और आज शाम को सोने से पहले आप ऐसा समर्पण करिए। The Lord has given his all to you. प्रभु ने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। He is satisfied, pleased and blessed you in so many ways. और उसने कई सारी बातों के द्वारा आपको संतुष्ट किया है, प्रसन्न भी किया है। Don't you like to reciprocate, give back, at least in small measure, for all that the Lord has given to you? जो सारी बातें प्रभु ने आपको दी है, उसके बदले में क्या आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया करके थोड़ा कुछ आप उसको नहीं देना चाहते? The Lord, in his great love, in his great anticipation, he is stretching his hands towards you, and whatever you give, he will accept. प्रभु अपने महान प्रेम में और बाट जोता है, अपने हाथ फैलाता है, और जो कुछ भी आप दोगे प्रभु उसे स्वीकार करेगा। Even as the Lord is speaking to you about your Isaac, tell him, make a commitment with him, promise him that you will place your Isaac upon the altar and also into his hands. और जैसे प्रभु आपके इसहाक के बारे में आपसे बातें कर रहा है, आप उसको कहिए, आप एक निर्णय करिए और बताइए कि जो इसहाक आपके जीवन में है उसको आप वेदी पर लाकर रखोगे। You will not be a loser by offering your Isaac. और आपके इसहाक को इस तरह अर्पण करने से आप निकम में नहीं बनोगे। You will only be benefited by offering your Isaac. लेकिन इस तरह से इसहाक को अर्पण करने के द्वारा केवल आपको लाभ ही होगा। We do not want to prolong the meeting, but later on, after the meeting is over, silently and quietly, you go upon your knees. If the Lord has spoken to you, you make a commitment and offer your Isaac to the Lord. इस सभा को और देर तक हम नहीं चालू रखेंगे, लेकिन सभा समाप्त होने के बाद आप कृपया घुटने पे जाकर आप प्रभु से प्रार्थना करिए और जो इसहाक आपके जीवन में है उसको आप अर्पण करिए। The Lord is calling you even for full-time service. Offer that Isaac also on the altar. अगर प्रभु आपको संपूर्ण समय सेवा में बुला रहा है तो उस इसहाक को भी आप वेदी पर चढ़ाइए। We do not know what that Isaac is. हम नहीं जानते कि वो इसहाक क्या है। The Lord knows it and you know it. लेकिन प्रभु उसे जानता है और आप उसे जानते हो। It's a transaction between you and your Lord. और ये आपके और आपके प्रभु के बीच होने वाला व्यवहार है। And on our part, we will pray and support you in our prayers. और हमारे ओर से हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में आप प्रार्थना के द्वारा आपकी सहायता करेंगे। If you need any further help, spiritual help,
contact the elders and be in touch with them, and they will guide and counsel you. और भी अधिकाई से कुछ आत्मिक सहायता आप चाहते हो तो जो बड़े भाइयों को आप संपर्क करिए, वो आपसे बातें करेंगे। Shall we pray? हम प्रार्थना करते हैं। Loving Father, our gracious God, we thank you, Lord, for the precious moments you granted to us to sit at thy feet like Mary and to hear your word. प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, मेरी की नहीं आपके चरणों के पास बैठकर आपके वचन को हम सुने, इसलिए धन्यवाद देते हैं। What a privileged people we are in this evil, wicked, and a hopeless world. और इस दुष्ट बुरे संसार में कितना ज्यादा आशीषित लोग हम हैं। Lord, we thank you for what a gracious giver to us. हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमको बहुतायत से देने वाले परमेश्वर हो। You would always give us not only in plenty, but the very best from your bounty. ना केवल आप बहुतायत से देते हो, लेकिन जो भी आपके पास है उसमें सबसे उत्तम जो बातें हैं वो आप हमको देते हो। We don't deserve, but yet, Lord, you are ushering in, you are filling our cups to the extent that our cups are running over today. हम इसके योग्य नहीं, लेकिन इस तरह आप हमको आशीषित करते हो कि ताकि हमारा कटोरा है वो उमड़ता जाता है। On our part, it is only failures, shortcomings, and disappointments towards you, and also grieving you many times. और हमारे पक्ष में केवल निकम्मापन और निष्फलता, और कई बार हमने आपको खेदित किया है। You are not rewarding us according to what we have done and what you have received from us. और जो बातें हमने की और हमसे जो आपने पाया, उस मात्रा में आप हमको प्रतिफल नहीं देते हो। Instead, O Lord, you have been only lavishing your love, granting our whatever we require, answering our prayers, and doing things beyond our asking and thinking. लेकिन उसके विरुद्ध आप केवल आपका प्रेम हम पर बहुतायत से उंडेल रहे हो, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हो, जो कुछ भी हम मांगते हैं आप उसको पूरा कर देते हो। This evening we thank you, Lord, for directly speaking to our hearts. इस शाम के समय धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बड़ी स्पष्टता से हमारे हृदयों में काम किया। We cannot deny that you have not shown particularly our Isaacs in our lives. हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि जो हमारे जीवन में इसहाक है और जो ऐसे इसहाक है वो आपने हमको दिखाया नहीं। Lord, the Isaac that you are demanding from our lives, may we be given the grace, Lord, to place that Isaac on the altar. और जो इसहाक आप हमसे मांग रहे हो उसे वेदी पर रखने के लिए हमें अनुग्रह आपसे मिले। There is nothing better than this. Like Abraham, we can give for you. और अब्राहम की नहीं, इससे अधिक और मूल्यवान दूसरा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं जो आप हम आपको दे सकते हैं। Abraham loved you so much, so dearly. You became so precious to him. You would not hold back his Isaac or even anything else from offering it to you. अब्राहम ने इतना ज्यादा प्रेम आपसे किया, आप उसके लिए इतने मूल्यवान हो गए कि जो इसहाक उसके लिए जो बहुत ही अति प्रिय था उसे अर्पण करने से भी वो पीछे नहीं हटा। Lord, give us that same heart of Abraham and the attitude of Abraham. प्रभु जी, इसी रीति से अब्राहम की नाई जो हृदय और उसका जो स्वभाव आप हमको भी दीजिए। Lord, if there are any Ishmaels in our lives, the substitution of your plan with our own plans, Lord, forgive us. प्रभु जी, हमारे जीवन में अगर कुछ इश्माइल की नाई है जहां पर आपके विचार को, योजना को बदलकर हमने अपनी स्वयं की योजना लाई है, तो आप हमको क्षमा करिए। That is why we are facing mockery in our lives. और इसी कारण से हमारे जीवन में हम हंसी और ठट्टा का सामना कर रहे हैं। Lord, we are in the danger of losing our birthrights also in our lives. प्रभु जी, हमारे जीवन में जो हमारा पहलौठे का अधिकार है उसे खोने का भी खतरा हमारे जीवन में बन गया है। We are going through griefs because of our substituted plans. और जो हमारी बदली हुई जो योजना है, प्रणाली है, उसके कारण हम बहुत ही दुख और खेदित हो रहे हैं। Lord, have mercy upon us.
प्रभु जी हमारे ऊपर आप दया करिए। Thank you, Lord, you are willing to pardon and you are gracious to forgive. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप क्षमा करते हो और बड़ी अनुग्रह से आप हमको क्षमा करते हो। As we are looking to you, Lord, in your mercy, forgive us and restore us back. और जब हम आपके पास देखते हैं तो आपकी दया में आप हमको क्षमा करिए और हमको पुनर्स्थापित करके अपने पास लेकर आइए। Lord, we once again thank you for all the help given to us in this Bible study, which has been, O Lord, gone through with much human limitation. और ये जो बाइबल अध्ययन बहुत ही मनुष्य की सीमित अवस्था में जो पूरा किया है, उसमें जो जो आपने सहायता की है, इसलिए आभारी है। Lord, wherever we failed in conveying your word, Lord, forgive us. And Lord, where further explanation is required, the Holy Spirit of God may meet that need. और आपके वचन को देने में जहाँ कहीं हम चूक गए हैं, आप हमको क्षमा करिए और जो जो कमी घटी है, पवित्र आत्मा उसको बहुतायत से पूरा करे और वचन को समझाए। And only the things of eternal value may be deposited in our hearts and preserved and protected. और केवल जो सनातन के मूल्य की बातें हैं वो ही हमारे हृदय में बस जाए और सुरक्षित रीति से बस जाए। And thy word may have an abiding effect in the days to come in our lives. और इन आने वाले दिनों में आपका जो वचन है वो हमारे जीवन में ऐसा स्थिर बन जाए और सदा के लिए बस जाए। Lord, commit thy people into your gracious hands, meet all their needs. आपके लोगों को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंप देते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा करिए। Claim, O Lord, Psalm Isaiah 27 and verse 3, that thou will keep, preserve, protect and watch over thy dear people night and day in this evil world. यशायाह 27 और 3 वचन को दावा करते हैं ताकि आप आपके बहुमूल्य लोगों को आप उनको संभालेंगे, उनको प्रभु जी आप इस दुष्ट संसार में उनको थामे रहेंगे और उनकी चिंता करोगे और उनको संभालेंगे। Bless thy people, O Lord, with thy blessings from heaven above, and also grant them thy peace. और स्वर्ग से जो आशीष है उनसे आप अपने लोगों को आशीषित करिए और आपकी शांति आप उनको दीजिए। Lift up your countenance upon them and be gracious unto them. आपके मुख का प्रकाश उन पर चमकाइए और उनके प्रति अनुग्रह को आप प्रकट करिए। We commit them, O Lord, to your care, protection, leading, and guidance and preparation for thy glorious appearing. और आपकी जो सुरक्षितता में हम उनको सौंप देते हैं और आपके महिमित जो आने वाला जो आपका महिमा का प्रगटीकरण है, आप जो आने वाले हो उसके लिए हम उनको सौंप देते हैं। Meet every need of thy precious people according to Philippians chapter 4 and verse 19. फिलिप्पी 4:19 के अनुसार आपके लोगों की जो जो आवश्यकता है उसको आप पूरा करिए। We ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. धन्यवाद के साथ सारी बातें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. आमीन। Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the throne of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory, majesty, dominion and power, both now and even till our Lord comes. Amen. 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 Amen.